Hello, my students. Hope you people are all right and rather facing the challenges posed by COVID 19. Friends, as you know, it has been communicated to me that there are certain topics left by my senior Dr. Arunji, who was teaching this paper, political system. So today I am going to discuss with you bureaucracy and its role, नौकरशाही और इसकी भूमिका. So first of all, I would like to clear with you what is bureaucracy. You might have studied bureaucracy in your public administration paper, लेकिन नौकरशाही का एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या भूमिका होती है, इसको डिस्कस करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोकतंत्र में नौकरशाही शब्द को अच्छी तरह से समझें. We all know that bureaucracy is a system of government in which most decisions are taken by state officials than by elected representative of the people. Bureaucracy is the institution that carries out administrative responsibility of the state. संक्षेप में नौकरशाही वह यंत्र है, एक तंत्र है जो राज्य के शासन को अमली जामा पहनाता है. If we consider another definition of bureaucracy, it has been termed as a government run by or manned by permanent officers of the states. In other words, it can be said that bureaucracy is the type of government or administration which is permanently manned by some permanent officers recruited by a body which act independently. एक ऐसा शासन तंत्र जिसमें काम करने वाले व्यक्ति एक संस्था के द्वारा स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाते हैं और वह राज्य का कार्य करते हैं. We can also say that bureaucracy is a government of permanent officers. These permanent officers act as advisor to the ministers but bear the burden of policy making and policy implementation both, and they are responsible to their immediate boss. नौकरशाह अपने बॉस मंत्रियों के प्रति, जो कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के बीच से चुने जाते हैं, अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं. एंड बॉस में भी ये ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर और ए मिनिस्टर और somebody else, but these officers are recruited, appointed, promoted clearly during their service. As one of the famous scholar of bureaucracy, Max Weber, has clearly stated that origin and inevitability of bureaucratic organization and rule, there is a complexity of points, complexity of situations, and this
complexity is increasing day by day as we see modern administration of state. The increasing complexity of modern administration only could be tackled by bureaucracy. नौकरशाही के द्वारा आज जो बहुत सारी समस्याएं हैं उनका निदान हो सकता है. So let us also remember what are the basic characteristics of bureaucracy. नौकरशाही की क्या विशेषताएं होती हैं. We all know that the bureaucratic officers are arranged hierarchically. एक उसमें हायरार्की होती है, नीचे से ऊपर तक कार्य का विभाजन होता है, और दिस इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय impersonal and written rules. नौकरशाही की दूसरी विशेषता यह होती है कि इसमें व्यक्तिगत इच्छा से शासन नहीं चलता, इसके रूल्स लिखित होते हैं. In a bureaucracy we find no human appeals, or rather human appeals has no importance. Only laws and rules of conduct of administration is followed. केवल नियम विनियम कानूनों के आधार पर जो संस्था काम करती है वह नौकरशाही कहलाती है. इसकी तीसरी विशेषता ये होती है कि इसमें इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, the recruitment of the bureaucrats based on personal efficiency and competence. उनकी क्षमता योग्यता के आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं. And this bureaucracy has स्पेशल डिमार्केटेड टास्क. उनके कार्य अच्छी प्रकार से डेलिनेट होते हैं, विशिष्ट होते हैं, बटे रहते हैं, सो ओवरलैपिंग नहीं होती है. एंड देयर इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ ऑफिशियल्स फ्रॉम ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासन के साधनों पर उनका कोई व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होता. आज इस विभाग में सचिव हैं, कल दूसरे विभाग में सचिव होंगे, परसों तीसरे विभाग में सचिव होंगे. सो प्रशासन के विभिन्न विभागों में उन्हें काम करने का अवसर मिलता है. और देयर इज ऑल्सो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एंड प्रमोशंस ऑफ ऑफिसर्स. नौकरशाही में जो अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, उनकी प्रमोशन की शर्तें, ये सब स्पष्ट रूप से क्लियर होती हैं. एंड इफिशियंसी, मेरिट, ऑनेस्टी आर ऑलवेज रिवार्डेड इन ए गुड ब्यूरोक्रेसी. एक अच्छी नौकरशाही में उनकी क्षमता, योग्यता, उनके गुण की स्वीकृति होती है. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन ब्यूरोक्रेसी देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट फॉर सीनियरिटी. वरिष्ठता का इसमें ख्याल रखा जाता है. इन सारी विशेषताओं को मिलाकर के when we see the functioning of bureaucracy, especially in a democratic country like India, भारत में नौकरशाही के क्या भूमिका है, क्या रोल है, इस बात की जब हम चर्चा करते हैं तो मैंने कल भी आपसे कहा कि भारत एक विशाल लोकतंत्र है
एक बड़ा प्रजातांत्रिक राज्य है, विविधताओं से भरा हुआ राज्य है और जिसके प्रशासन के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने में केवल और केवल जनप्रतिनिधि के माध्यम से बनी हुई निर्वाचित की गई सरकार ही अकेले कार्य नहीं कर सकती, बल्कि शासन का कार्य करने के लिए भारत जैसे विशाल देश के पास एक विशाल नौकरशाही का तंत्र भी है, संजाल है। प्रदेश के स्तर पे नौकरशाही है, राष्ट्र के स्तर पे नौकरशाही है, स्थानीय स्तर पर नौकरशाही है। सो these bureaucrats are in a sense real government. They govern the country. People's representative may be elected after another 5 years or may not be elected after 5 years, but प्रशासक अपने स्थिर भाव से अपने स्थान पर सर्विस पर्यंत स्थापित रहते हैं। तो इन एवरी मॉडर्न स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी इज प्रैक्टिकली indispensable. Without bureaucracy, no administration can be run properly and efficiently. बिना नौकरशाही के कोई भी प्रशासनिक कार्य दक्षतापूर्वक नहीं संपन्न हो सकता, उचित तरीके से नहीं हो सकता। So even an ordinary management is not possible. So what about the other functions of states? Weber has clearly stated the reasons in the following words. I am bound to quote his words. The decisive reason for the advancement of bureaucratic organizations in different countries has always been its purely technical superiority over any other form of organization. किसी भी संगठन की तुलना में नौकरशाही की जो सर्वोच्चता होती है, तकनीकी सुपीरियरिटी होती है, वह बहुत ज़्यादा होती है। और इस अपनी तकनीकी सुपीरियरिटी के चलते, तकनीकी सर्वोच्चता के चलते, रिफाइननेस के चलते, नॉलेज के चलते, दे हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल इन मॉडर्न स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। देयर आर इनहेरेंट virtues in a bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी के कुछ अंतर्निहित गुण होते हैं, इसे भी हमें जानना चाहिए। What are these inherent virtues? There have been precision, speed, unambiguity, knowledge of state, knowledge of files, continuity, unity, strict subordination, reduction of friction, and material and personal costs which would be raised by the maximum point in the strictly bureaucratic organization. इस अपनी इन विशेषताओं के चलते किसी भी देश में प्रशासन संचालित अच्छी तरह से संचालित किया जाता है। एंड मोर ओवर द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हैव नो डाउट कंट्रीब्यूटेड ब्यूरोक्रेसी टू बिकम इंडिस्पेंसेबल। आधुनिक राज्य का जो संगठन है, लोगों की जो बढ़ती हुई आर्थिक एक्सपेक्टेशंस, प्रत्याशा है,
उस प्रत्याशा को पूर्ण करने में जो नौकरशाहों की भूमिका होती है, उसके चलते नौकरशाही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राज्य प्रशासन के विभिन्न अंगों में। उदाहरण के लिए क्या काम करती है, यदि मैं आपको समझा दूं तो मैं समझता हूं कि यू विल बी क्लियर एनफ कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन ए कंट्री। एक देश के प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका क्या होती है। वी ऑल नो दैट इट इज द ब्यूरोक्रेसी which runs the general administration of the country. यह नौकरशाही है जो देश के सामान्य प्रशासन को संचालित करती है। Not only this, it also plays an important role in policy making and policy implementation. यह नौकरशाही है जो नीतियों का निर्धारण करती है और नीतियों को लागू करती है। It also articulates the aggregate of interest of the people. हाल के दिनों में नौकरशाही की यह भी भूमिका है कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का समुच्चय कैसे हो, सभी के हित कैसे सुरक्षित हों, इस कार्य को भी नौकरशाही निभाती है, नौकरशाही करती है। इन आर्टिकुलेटिंग एग्रीगेटिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन which a bureaucracy plays in a country is maintenance of stability in administration. प्रशासन की स्थिरता को बरकरार रखती है। साथ ही साथ यह विकास के मुद्दों को अपने आचरण में तरजीह देती है और इस तरह से समय समय पर नौकरशाही की भूमिका बदलती रहती है, जिसे हम कहते हैं चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन चेंजिंग टाइम्स। बदलते हुए परिवेश में नौकरशाही की बदलती हुई भूमिका। इतनी सारी भूमिकाओं के साथ इफ इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू कंक्लूड, संक्षेप में यदि मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगा कि इन ब्रीफ ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस लेंड इटसेल्फ टू क्राइटेरियन क्रिटिसिज्म। हाल के वर्षों में नौकरशाही को बहुत सारे आक्षेपों का सामना करना पड़ा है। इट इज ऑफन considered to be synonymous with redundancy. Redundancy इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि यह पीछे देखने वाली संस्था हो जाती है। कालांतर में इसमें आर्बिट्रेरीनेस आ जाती है, इसमें इनएफिशिएंसी आ जाती है, इसमें रेड टेपिज्म डेवलप कर जाता है। एंड वन कॉमन सैटेरिकल डेफिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉसिबल इम्पॉसिबल। नौकरशाही पे आक्षेप किया जाता है कि जो संभव है उसको नौकरशाही अपनी कलम से असंभव बना देती है। और इसके अलावा एडिशनली समटाइम्स bureaucratic structures tends to be backward looking, and this backward perspectives creates a conflict with an innovative or reformative agenda of government who demands forward looking concept। तो
there is need to identify ways to improve the functioning of bureaucracy. नौकरशाही की क्षमता को बनाए रखने के लिए, उसकी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, उसके गुणों को बनाए रखने के लिए हमें नौकरशाही में समय समय पर यथेष्ट सुधार करना चाहिए, जिससे नौकरशाही के ऊपर जो आक्षेप लगते हैं, कभी कभी हम सभी लोग जानते हैं नौकरशाही के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, और ये भ्रष्टाचार कॉमन है, इसमें केवल नौकरशाह जिम्मेदार नहीं है, इसमें मिनिस्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होते हैं। तो इसके लिए केवल नौकरशाहों पर दोष देना ठीक नहीं है। व्हाट वी नीड a time-tested reforms in our bureaucratic structure so that they can play their constructive role in the development of country. With these words, friends, I finish my talk. If you have any queries, problems in understanding of this topic, bureaucracy and its role, then you can ask me separately. So thank you very much.